Good morning, friends. In last lecture, we discussed construction and working of simple screw jack. In this lecture, we will discuss construction and working of differential screw jack. Friends, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लें. So, first of all, what is differential screw jack? It is an improved form of a simple screw jack in which the velocity ratio is intensified with the help of a differential screw. That is, यह एक साधारण स्क्रू जैक का एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है जिसमें डिफरेंशियल स्क्रू की मदद से वेलोसिटी रेशियो को इंक्रीज किया जाता है. Here, figure shows a differential screw jack which provides an increased velocity ratio compared to that of a simple screw jack. यहाँ फिगर एक डिफरेंशियल स्क्रू जैक दिखाता है जो एक सिंपल स्क्रू जैक की तुलना में एक बढ़ा हुआ वेलोसिटी रेशियो प्रोवाइड्स करता है. So, with the same effort, a differential screw jack is capable of lifting larger loads than a simple screw jack. और एक ही प्रयास के साथ, that is with the same effort, एक डिफरेंशियल स्क्रू जैक एक सिंपल स्क्रू जैक की तुलना में बड़े भार उठाने में सक्षम है. that is lifting larger loads than a simple screw jack. So, the principle on which this machine works is the same as that of any other differential machine. That is, जिस सिद्धांत पर यह मशीन काम करती है वह किसी भी अन्य डिफरेंशियल मशीनों के समान है. And in this case, action of one part of the machine is subtracted from the action of another parts. So, in this machine, the differential screw is in two parts, A and B. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, part A and part B. These two threaded elements A and B of different diameters and pitches, but having threads in the same directions. That is, ये दोनों अलग अलग व्यास और पिच के थ्रेड A और B हैं, लेकिन थ्रेड्स एक ही दिशा में रहते हैं. Now, part A, which is hollow and have bigger diameter than screw B, is threaded both on inside and outside, whereas the part B is threaded on the outer side, means outside only. That means भाग A को अंदर और बाहर दोनों ओर से थ्रेडेड किया गया है, जबकि भाग B को धागे पर केवल बाहर से थ्रेडेड किया गया है, that is पिरोया गया है. So, the screw A passes through nut C. यहाँ पे nut C फिगर में मैंने दिखाया है. And the screw A passes through nut C. So, the external threads of A, that is, यदि हम A और C की बात करते हैं, the external threads of A gear with the threads of the nut C, which forms the body of the differential screw jack, जो कि यहाँ पे body का जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है. और यदि हम A और B की बात करें तो इंटरनल थ्रेड्स ऑफ A gears with the external threads of screw B. Hence, the part A behaves as a screw for the nut C and as a nut for the screw B. That is, the part A behaves as nut for the screw B. Now, the weight W to be raised or lowered is placed on the top of a screw head or collar of the screw B. So, the screw B does not rotate but moves in vertical directions only and carries the load. Hence, when the effort P is applied at the end of a lever or handle,
which is inserted into a hole provided in the collar, जो कि कॉलर में दिए गए होल में ये इंसर्ट किया गया है. So first of all, when the effort is applied at the lever, the screw A rise up and simultaneously the screw B goes down. That is, जब हम हैंडल को रोटेट करते हैं either clockwise or anti-clockwise directions, then screw A will also rotate either in clockwise or anti-clockwise. But screw B does not rotate but moves in vertical directions only, means up and down. That is, हम effort अप्लाई करते हैं तो स्क्रू ए अप या डाउन जाएगा नट सी के अंदर, जो इसके थ्रेड की पिच है, और यदि स्क्रू अप जाएगा तो स्क्रू बी उतने ही पिच स्क्रू ए के अंदर डाउन जाएगा, जो कि स्क्रू बी के लिए नट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि स्क्रू ए इज हॉलो एंड हैव बिगर डायमीटर देन स्क्रू बी. सो जब हम एफर्ट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो चूंकि यहाँ डिफरेंट पिच है और सेम डायरेक्शंस में थ्रेड है, और चूंकि स्क्रू बी का डायमीटर भी छोटा है और पिच भी डिफरेंट है, सो जैसे जैसे स्क्रू ए ऊपर की ओर मूव करेगा उसके साथ कुछ प्रोपोर्शन में स्क्रू बी भी इसके अंदर जाएगा, और क्योंकि स्क्रू बी तो स्क्रू के ऊपर चलने की कोशिश करेगा और स्क्रू बी इसके अंदर चलता चला जाएगा, और जैसे जैसे स्क्रू ए अप जाएगा और जो लोड स्क्रू हेड पे रखा हुआ है इस तरह से लिफ्ट होता है. सो इस तरह से हम हैंडल या लीवर द्वारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देकर लोड को लिफ्ट या डाउन कर सकते हैं. हेंस द लिफ्ट ऑफ द लोड इज algebraic sum of the motions of the screw A and B. Let PA and PB be the pitches of the screw A and B respectively, where pitch is the center to center distance between two consecutive threads. Now, when effort is applied and lever is made to turn one complete rotation, the screw A lift off by pitch PA, and in the same time the screw B comes down by the pitch length PB. So अपवार्ड डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पी ए, दैट इज पिच ऑफ द स्क्रू ए, एंड डाउनवर्ड डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू बी क्या हो जाएगा पी बी, दैट इज हेंस नेट डिस्टेंस थ्रू द लोड इज लिफ्टेड इक्वल टू पी ए माइनस पी बी, क्योंकि अब सेम टाइम में जब स्क्रू पी ए अपवार्ड जा रहा होता है तो उसी समय ये जो पिच बी है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है. दैट्स वाई नेट डिस्टेंस थ्रू द लोड इज लिफ्टेड इक्वल टू पी ए माइनस पी बी. नाउ लेट एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द लीवर आर्म, W इक्वल टू लोड लिफ्टेड एंड P इक्वल टू एफर्ट अप्लाइड एट द एंड ऑफ द लीवर टू लिफ्ट द लोड. जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, लेंथ ऑफ जो लीवर है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉलर से कितना डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे है. सो इफ वी फाइंड आउट वेलोसिटी रेशियो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द लीवर आर्म कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू L. नाउ वेलोसिटी रेशियो इज distance moved by the effort to the distance moved by the load, and distance moved by the effort कितना है यहाँ 2 pi L, and distance moved by the load कितना है PA minus PB. That's why VR equal to कितना हो जाएगा 2 pi L divided PA minus PB,
एंड ऑल्सो वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड, दैट इज W/P. सो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड वेलोसिटी रेशियो, दैट इज W/P इंटू PA माइनस PB डिवाइडेड 2πL. सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल स्क्रू जैक का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया. तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. In next lecture, I will discuss numerical based on differential screw jack. Thank you.